طبیعت ثانی، آمنہ ایمان، طبیعت کا حصہ، طبیعت کا حصہ بن جانا یا ایک عادت پکی بن جانا، پختہ عادت. حاجت کیا مطلب ہے حاجت کا دانیال بتائیے؟ حاجت کا کیا مطلب ہوگا؟ ضرورت. جی حاجت کا مطلب ہے ضرورت. بیٹے پلیز کلاسز اٹینڈ کریں. دیکھیں تھوڑے سے بچے ہیں، آپ کا کام دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ آپ جتنی بھی کلاسز لیں گے آپ کو یہ فائدہ ہے اور آپ اس کو ایکسپلین سمجھ سکتے ہیں. اس سبق میں مصنف نے جو ہے کاہلی کے بارے میں بتایا. سر سید احمد خان کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ باقی ہندوستان کے لوگ جو ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ کاہل ہونے والے لوگ کس طرح ہوتے ہیں. کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سستی کا شکار ہو کر اور کاہلی کا شکار ہو کر وہ جانوروں جیسی عادتوں کے بن جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، وہ بھی اس کا بھی کوئی سستی پڑی رہنے سے، فارغ رہنے سے اس کی عادات خراب ہو جاتی ہے اور وحشت بنے کی عادت کو اس کو پہنچ جاتا ہے. مصنف نے ان دونوں کو کہا ہے کہ دونوں جو ہے وحشی ہے. دونوں ایک جو ہے وہ پڑھا لکھا رکھ رکھاؤ والا وزادار وحشی ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جاہل گنوار یا جنگلی شخص ہوگا جس کو کہ وہ اس نے نہیں سیکھا ہوتا. اسی طرح مصنف اینڈ میں یہی کہتے ہیں کہ جن کاہلی کی عادت کو جو قوم اپنا لیتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو مصنف کے نزدیک ہر شخص جو ہے اپنی کاہلی کا مطلب یہی بتایا کہ اپنے دل کو فارغ چھوڑ دینا، دل کی قوتوں کو کام میں نہ لانا. تو مصنف کے نزدیک یہی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی فکر، سوچ اور کسی بات کی کوشش میں لگا رہے تاکہ اسے اس کا دل جو ہے فارغ رہنا نہ بیٹھے، اور اسی طرح سے کوئی قوم جو ہے اس کی ترقی ممکن ہے. اس کے کوشچن آنسر ہے. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں، عقل اور سمجھ کو استعمال نہ کرنا، اور یہی دنیا کی سب سے بڑی کاہلی ہے. انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان جو ہے جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، اس کے دل کی قوتیں سست ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتی، تو وہ حیوانی خصلت میں پڑھ کر سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے. کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اب کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ اپنی تمام ضرورتوں کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے. قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری جو ہے ہر وقت فارغ پڑے نہ رہنے سے. جب تک انسان کے دل سے کاہلی یا سستی کو دور نہ چھوڑیں گے تب تک دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے. سبق کاہلی کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کیا؟ بولیے یا آپ نے محنت. جی شاباش. لوگ آرام نہیں ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے محنت. لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. کون سے لوگ؟ چاروں میں سے کون سی آپشن صحیح ہے؟ تیسری روزانہ محنت کرنے والے. روزانہ محنت کرنے والے لوگ. ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ کون سی آپشن صحیح ہے اس میں؟ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھیں. شاباش. اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے. قوم کی بہتری کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ آمنہ بتائیے. کاہلی چھوڑ کر. جی کاہلی چھوڑ کر. نیکسٹ ہے خالی جگہ کو آپ نے موضوع لفظ سے
करना है। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना, इन चारों लफ्जों में से कौन सा सही काहिली। है? काहिली है। जब उसके दिली काहिली। कुआ की तहरीक हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी खसलत में पड़ जाता है। हैवानी। शाबाश, हैवानी खसलत में पड़ जाता है। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवायद दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसका भी सबब यही है कि हमने क्या इख्तियार किया? काहिली। शाबाश। किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए। बेकार। बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। काहिली का मुतजाद क्या होगा? काहिली का मुतजाद होगा चुस्ती। सुस्ती वैसे वर्ड है, सुस्ती का भी चुस्ती होता है, काहिली का भी जो मुतजाद होगा वो चुस्ती होगा। लिखते जाए अपनी बुक में साथ साथ। अकल मुतजाद क्या बेअकल। होगा? बेअकल। आरजी, इसका मुतजाद क्या होगा? दायमी। मुस्तकिल। मुस्तकिल का जो है ना, मुस्तकिल और आरजी भी ठीक है, लेकिन दायमी, इसका दायमी और आरजी होता है। दायम रहने वाला, हमेशा रहने वाला, तो इसका मतलब होगा दायमी। इसका मुतजाद होगा दायमी। वहशी का मुतजाद क्या होगा? मुहज्जब। वहशी का मुतजाद मुहज्जब। और शक का मुतजाद यकीन। शाबाश। और मसरूफ का यकीन। मुतजाद फारिग। 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 शाबाश फारिग। जी। और ये अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह आपने रीड करना है, कम से कम इसको 2-3 दफा रीड करना है। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपने इनको एक्सप्लेन करते वक्त इनको लफ्जों को आसान उर्दू में करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गजल। हिस्सा गजल खोलिए अपनी किताब में। मिल गया आपको पेज? हिस्सा गजल 116 पेज पे है। गजल नंबर 8 पढ़ेंगे हम। मिल गया है सबको? टीचर आपकी खोलिए। आवाज में कटिंग हो रही है। ओके, आपने गजल जो Yes. है मीर तकी मीर की पढ़नी है। इसको टीचर हम आपकी खोलेंगे पेज नंबर 1। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही सही? नहीं आ रही अभी भी। अच्छा चले, आप इसकी रीडिंग करें। मीर तकी मीर के हालाते जिंदगी को पढ़ें और फिर गजल की रीडिंग करें। ईमान पढ़ें। मीर तकी मीर। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली तकी मुत्तकी था। तकी था। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल और अमानुल्लाह की वफात के बाद मीर को तलाशी माश के लिए आगरा छोड़कर Is दिल्ली page आना number? पड़ा। What's the page number? पेज नंबर है 116। फैसल, आप बेटे इतने दिनों बाद क्यों आए हैं? मुझे जरा इसका जवाब दीजिए। और आपकी अटेंडेंस लग रही है, एब्सेंट मार्क हुई भी है। फैसल जवाब दे बेटा। यस बेटे यस आप कौन क्लासेस ले रहे हैं? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन उतना नहीं आता। कोशिश, आपने मेरे पास एक दिन भी नहीं ली क्लास। मेरे पास सब एब्सेंट है आपकी। अच्छा अलबत्ता ओके मैं जी बेटे, उर्दू की क्लास आपने नहीं ली एक भी। मेरे पास एब्सेंट मार्क्स हैं आपकी। और यस आपने उर्दू का काम सबमिट करवाया है, बट आपने इनकम्प्लीट काम सबमिट करवाया है। उसको कंप्लीट कीजिए। रजिस्टर वापस जाएगा तो उसको कंप्लीट करें। सारा जो जो मैंने लिखा है उसको पूरा करना है और क्लासेस जरूर लिया करें, क्योंकि मैं अटेंडेंस लगाती हूँ। अब देखिए आप आए हैं तो मैंने अटेंडेंस आपकी ले ली है फौरन, लेकिन जब आप नहीं आते तो आपकी अटेंडेंस से एब्सेंट मार्क होती है। तो अपना ओके काम भी आपको करना है और इनकम्प्लीट वर्क है तो उसको कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं दिया वो बच्चे अपना काम जल्द अज जल्द करके उसको स्कूल में सबमिट करवाएं। चले ईमान पढ़े आगे। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वह नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में खराब अमन और अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसिफ अलद्दौला आसिफुद्दौला
आसिफ उद्दौला कहते हैं इसको, अलिफ लाम को लाम साउंड हो जाता है, आसिफ उद्दौला कहते हैं। ओके। आसिफ दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। जी फैसल अब आगे बढ़े। फैसल आगे पढ़िए बेटे। ऐसे है। रीड करें फैसल। फैसल व्हाई यू आर नॉट रीडिंग? आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वैसे आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। आप रीडिंग करें, अब करें। मिस मुझे मिल नहीं रहा। आपने किताब ही नहीं खोली होगी। सिर्फ आप लगवा के बैठे थे और किताब नहीं खोली ना अपनी अपनी। पेज नंबर 107 है आपका, खोलें उसको। 117 पेज है। यस खोल लिया। अब बड़े मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, यहाँ से पढ़े। मिस मेरी बुक चेंज है। मीर तक की मीर नहीं निकाला आपने, गजल नंबर 1 टीचर पेज 124 पे कुछ 124 में यार। 124 खोल लें। फैसल जल्दी खोलें और रीड करें। Yes, शाबाश। मीर को खुदाए सखन कहा गया है। उन्होंने मीर को खुदाए सुकून कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ इसनाफे शेर में तिबा आजमाई की है, मगर इनकी पहचान गजल गोई है। वो बिलाशुबा गजल के बादशाह हैं। खलूस दर्दो गम तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गजलें दिल पर असर करती हैं। इनकी शायराना अजमत का एतराफ न सिर्फ इनके अहम असर हम असर होते हैं उनके जमाने के लोग जो थे, उनके जमाने के जो शायर थे, उनको कहा जाता है हम असर। उनके जमाने के जो शायर थे उन्होंने किया है कि हम असर शौरा ने किया है, बल्कि मुतअखिरीन ने भी इन्हें सराहा है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताजे शौरा उर्दू करार दिया है। मीर की तसानी में एक खुदनोश जिक्र मीर, एक तस्करा निकातुल शौरा, एक फारसी और 6 उर्दू दवावीन शामिल हैं। जी ये इनके मीर तकी मीर के हालात जिंदगी हमने पढ़े। इनकी लिखी हुई गजल है जो कि हम इसको पढ़ने लगे हैं। चले दानियाल, अब आप इसकी रीड करें मीर तकी मीर की गजल को। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सर हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाज की उसके लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके आमना शहबाज आप पढ़े बेटा। यस, चश्मे दिल खोल उस भी आलिम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। पढ़े आगे। आगे भी पढ़े बेटा। ने जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। चले आप पढ़े ईमान। आतिश गम ने दिल भुना शायद देर से भूख कबाब की सी है। मीर उन नीम बाज आंखों में। ईमान अब आप रीड करें बेटे। सारी मस्ती शराब की सी है। आतिश गम में दिल भुना शायद देर से भूख कबाब की सी है। मीर और नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की
جی یہ جو ہے غزل ہے، آپ نے پچھلے جتنے بھی کلاس 8 تک پڑھی ہیں اس میں آپ نے نظمیں پڑھی ہیں یا آپ نے مرثیہ یا کوئی نظم آزاد نظم پڑھی ہے، ہم پڑھی ہے، نعت پڑھی ہے. غزل آپ کو کلاس 9 میں آ کے یہ فرسٹ ٹائم آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہوں. لغت میں غزل کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی کہ شاعر حضرات جو ہیں وہ عورتوں کی باتیں کرتے ہیں اور عورتوں کی تعریف میں کوئی نہ کوئی شعر یا تعریفی جملے لکھتے ہیں تو اس کو غزل کہا جاتا ہے. اور اس میں حسن و عشق اور اس میں اس کی دو ہوتی ہیں محبت جو ہوتی ہے وہ عشق خدا سے بھی ہو سکتا ہے اور عشق محبوب دنیاوی محبوب بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو ایسا جتنا ڈیپلی لینے کی ضرورت نہیں، صرف اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے کہ یہ شاعر حضرات جو تھے ان دنوں اس زمانے میں جس زمانے میں انہوں نے شعر و شاعری کی اس زمانے میں اتنے جو تھے وہ ان کے پاس آسائشیں نہیں تھی جس طرح کہ آج ہمارے پاس ہے، ٹی وی ہے، میڈیا ہے اور چیزیں ہیں. تو شاعر حضرات جو تھے وہ اپنی خوشی کا سامان اسی طرح شاعری کی محفلیں سجایا کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے شعر گوئی کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی شاعری سناتے تھے. تو محفل اس کو محفل مشاعرہ اس کو کہا جاتا تھا. اور پھر وہاں بیٹھ کر وہ جو اپنی شاعری ہوتی تھی اس کے بارے میں بات چیت کیا کرتے تھے. تو جو غزل ہوتی ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ ان کی باتوں کے بارے میں، ان کی تعریف میں، ان کے محبت میں شاعر حضرات کرتے تھے. لیکن یہ وہ جس طرح کی تعریف اپنی جو محبوب کے بارے میں شاعر کہتے ہیں یہ وہ حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا تھا. کیونکہ آج آپ یہ 200 سال پرانی بات اگر ہم سوچیں کہ 100-200 سال پہلے جو شاعر حضرات تھے تو وہ آج کے دور میں جس طرح کہ ہمیں آزادی حاصل ہے اس دور میں تو نہیں تھی نا ان کو آزادی، نہ وہ مل سکتے تھے کسی سے، نہ کوئی بات چیت کر سکتے تھے. لیکن شاعر اپنے خیالات میں، اپنے تخیلات کی دنیا میں ان کو ایک خاکہ سا گھڑ دیتا تھا اپنے محبوب کا اور وہ اشعار اس کی تعریف میں وہ لکھا کرتا تھا. اس لیے اس کو ہم غزل کے اشعار کہتے ہیں. اس کو یہ اور غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے. مثلا ایک شعر اس نے دنیاوی محبوب کے لیے اگر کہا اس میں اس کا پورا معنی موجود ہوگا اور دوسرے ہی شعر میں وہ اپنے رب کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں بھی وہ شاعر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ہے یہ شاعر کا سوچ، شاعر کے دماغ میں جو اس وقت خیال آیا وہ کس کے بارے میں ہے. تو ایک شعر کے بعد بھی اس کا میننگ پورا اس میں واضح ہو جاتا ہے کسی بھی ایک شعر میں. اور اس کے اندر جو ہے ہر شعر جو ہوتا ہے اس کا موضوع کوئی بھی اگر ٹاپک ہوگا تو اس کے اعتبار سے وہ ایک مکمل شعر ہوتا ہے. اب غزل کے جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں. گرامر کی روح سے غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں. یعنی کہ غزل کا پہلا شعر جو ہوگا اس کو غزل کا مطلع کہا جائے گا اور غزل کا جو آخری شعر ہوگا اس کو مقطع کہا جاتا ہے. لیکن غزل کے اگر آخری شعر میں شاعر جو ہے اپنا نام استعمال کر لیتے ہیں تو وہ غزل کا آخری جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا سب کو اس چیز کی. اب میں اس کی ایکسپلینیشن کرنے لگی. کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. اینی کوشچن بیٹا؟ بہرحال یہ غزل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ غزل ایک فرضی سی جو ہوتی ہے محبوب اس کے بارے میں وہ تعریف میں اس کی کسی بھی چیز کے بارے میں وہ بڑے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو بیان کرتے ہیں. اب فرسٹ شعر جو اس کا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے. حباب کہتے ہیں پانی کا ایک بلبلا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حباب. ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے. سراب ہوتا ہے دھوکا. ریگستان میں دور سے جب ریت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ پانی ہو.
कभी आपने सड़क पर सफर करते हुए भी देखा होगा गर्मी की शिद्दत में, जब गर्मी का मौसम बहुत शदीद होता है तो जब हम सड़क पर गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हमें दूर से सड़क लगती है कि उस जगह में पानी खड़ा हुआ है, आता है ना, सब में से किसी सबको फील होता है कभी कभी। तो वो शराब होता है, असल में वो रेत के जर्रे जो होते हैं वो धूप की रोशनी से, सूरज की जो शुआओं से वो चमकते हैं तो वो दूर से देखने वाले को पानी महसूस होता है। इसी तरह रेगिस्तान में भी जो रेत होती है वो दूर से जो होते हैं लोग, उनको वो सफर करने वाले मुसाफिर जो होते हैं काफिलों वाले, वो जब दूर से देखते हैं सूरज की रोशनी रेत पर पड़ रही है तो वो उनको लगता है कि पानी है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी हर जगह आम नहीं मिलता। तो शायद के नजदीक ये जो शराब है ये एक धोखा है, ये पानी का जो धोखे का हमें गुमान होता है रेगिस्तान में सड़क पर, तो इस चीज को शराब कहा जाता है कि ये असल में हकीकत नहीं है, ये एक धोखा है। शायर ने इस शेर के गजल के पहले शेर में मतलब में क्या कहते हैं कि इंसान की हकीकत, हस्ती कहते हैं अपनी हैसियत, इंसान की हकीकत एक बुलबुले जैसी है। पानी का बुलबुला जो होता है वो थोड़ी देर के लिए जमीन की सतह पर नमूदार होता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो फौरन ही, आप टब में पानी भर रहे हैं, आप जमीन पे पानी गिरा रहे हैं, थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े बुलबुले उसमें होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो शायर ने इंसान की जिंदगी की हैसियत जो है वो इस बुलबुले की मानिंद करार दी है कि इंसान की जिंदगी की जो हैसियत है वो एक पानी के बुलबुले से बढ़कर नहीं है। और यहाँ जो है जाहिरी जो शानो शौकत है, जितनी भी इंसान दुनिया में रहते वक्त अपने शान और अपनी चीजें को बनाता है उसको, वो सिर्फ एक धोखे में इंसान रहकर करता है, क्योंकि ये नहीं पता होता कि कब खत्म हो जाए जिंदगी और कब बुलावा आ जाए और कब उसका दुनिया से जाना चला जाता है। तो वो इस धोखे से, इस शराब में खोया रहता है, दुनिया वाले शराब में। अब इस शेर के पहले मिसरे में शायर जो है वो दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया जो है एक फना होने वाली चीज है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये आखिर इसने एक दिन खत्म होना है। अब इसकी हैसियत जो है, इंसानी जिंदगी जो है, इंसान जो है दुनिया में, देखें आज क्या हकीकत है इंसानी जिंदगी की, बड़ी है मैक्सिमम 100 साल कोई जिंदा रह लेता है, कोई 70 साल रह लेता है, कोई 80 साल, कोई जवानी की मौत में, वक्ती मौत में चला जाता है। तो इंसान की जो जिंदगी की हकीकत है वो एक पानी के बुलबुले से ज्यादा नहीं है। इंसान इस दुनिया में जिस तरह के बुलबुला एक पानी की सतह पर थोड़ी देर के लिए जाहिर होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, एकदम फट जाता है और फिर उसकी हकीकत उसकी खत्म हो जाती है, इसी तरह वो खत्म होकर मौत की आगोश में चला जाता है, फिर दूसरा बनता है, इसी तरह अगला आता है। इंसान की जो हैसियत है वो भी दुनिया में तो बड़ी शान शौकत से वो रहता है जी, बड़ी जिंदगी में हमने शान शौकत से जिंदगी गुजार ली, लेकिन जो ही मौत की घड़ी आ पहुंचती है, जो ही मौत का वक्त आ पहुंचता है, तो इंसान की सारी सारी शान शौकत, जो लिबास, जो उसने घर में चीजें बनाई होती हैं, वो सारा यही रह जाता है, वो कहीं उसके साथ नहीं जाता, वो उसका जो है वो इसी जगह खत्म हो जाता है। फिर इंसान जो है उसको समझ आ जाती है कि ये तो मैं जिंदगी जो थी एक धोखे में गुजार, और क्योंकि उसको आखिर नजर आना शुरू हो जाता है कि मेरा तो अब अगला काम शुरू हो गया है। इसी की मिसाल जो है शायर ने उस रेत में चमकने वाली, सहरा की रेत की चमकने वाली जो रेत, उससे इसकी मिसाल दी है। इंसान जब सफर करते हैं दूर, उनको सहरा में जो रेगिस्तान में रेत चमकती हुई दिखाई देती है, तो वो उसको पानी जी बेटे हाँ जी, उनको बैठ के नहीं रखा है। फैसल क्या बात है बेटे? फैसल पूछ रहे थे। कुछ
हाँ जी, जब रेत में चमकती हुई रेत को पानी समझकर जब मुसाफिर उसके करीब जाते हैं, लेकिन जब करीब जाते हैं तो पता चलता है कि धोखा है, ये तो पानी है ही नहीं था, ये तो रेत थी जो कि जिसको वो पानी समझकर उसके करीब आए थे। इसी तरह ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत इंसान को मौत के वक्त जाहिर हो जाती है। जो ही मौत का वक्त करीब आता है तो उसको पता चलता है कि मैं दुनिया में बहुत थोड़ी देर के लिए रहा। इंसानी जो जिंदगी है दुनिया में सिवाय 2-2.5 घंटों के उस वक्त के जो कि आखिरी दिन का वक्त है वो 50,000 साल का दिन होगा, उसके हिसाब से तो हम दुनिया में सिर्फ 2-2.5 घंटे जिंदगी गुजारने आए हैं। और उसमें हम कितने अमल कर लेते हैं ऐसे जो कि अल्लाह को नापसंद है, जो कि बंदों को नापसंद होते हैं, और अपने लिए हम अपने अमाल का बोझ, गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कि जब हम अल्लाह के पास जा रहे होते हैं तो हमारे पास अपनी नेकियों के बजाय ज्यादा गुनाहों का बोझ होता है। अब इसको आपको समझ आ गई ना शेर की बेटा? मैं सारा एक्सप्लेन करके मैं आपको रिटर्न वर्क दूंगी, फिर आपने इसको याद करना है। इसको अगला शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब पहला शेर इंसान की जिंदगी के बारे में शायर ने बताया, उसमें उसको पूरा मफहूम वाजे कर दिया। यानी कि गजल का एक सिर्फ ये भी है कि इसके हर अशार के जो मायने होते हैं पूरे मुकम्मल होते हैं। अब पिछले शेर में शायर ने इंसानी जिंदगी की हकीकत एक बुलबुले की माने यानी कि धोखे की माने करार दी है। अब एकदम से अब शायर कहाँ आ गए? महबूब के होठों की नाजुकी की तरफ। अब शायर कह रहे हैं कि मेरे महबूब के होठों के नाजुकी या उसके नाजुक अंदामी को क्या कहें, जिस तरह के गुलाब के फूलों की एक पंखड़ी होती है ना, आपने गुलाब के फूल देखे होंगे, उसकी एक एक पत्ती को देखे तो कितनी नरम मुलायम होती है, उसको तोड़े तो बिल्कुल मुरझा जाती है। तो शायर की इस बात की खूबी है कि उन्होंने कितनी खूबसूरत मिसाल देकर, एक फूल की मिसाल देकर अपने महबूब के होठों की तारीफ की। अब गजल की यही खूबी है कि पहला जो शेर था बिल्कुल मायने के लिहाज से डिफरेंट था, और अब दूसरा शेर बिल्कुल दुनियावी महबूब के तारीफ में उसने लिख दिया। अब उसमें उन्होंने अपने महबूब के होठों की तारीफ की है कि भी उनके यानी कि शायर की नजर इतनी गहरी होती है कि वो उसकी दुनिया में जो चीजें हैं, दुनिया की अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, उसको फूलों की मिसाल उसको नजर आई। उसने कहा कि फूल जो है वो बिल्कुल नाजुक और नर्मो नाजुक होते हैं, उनको उतारा जाए, दरख्त से उतारा जाए, पौधे से उतारा जाए तो वो टूट के मुरझा जाते हैं। तो शायर की नजर में अपने महबूब के होंठ जो है वो बिल्कुल गुलाब के फूलों की पंखड़ी की तरह है, पत्तियों की तरह है, नाजुक है। नाजुकी की वजह से शायर की जो नजर है गहरी, उसकी वजह से उनकी नजर जो है जी बोले, कौन बोलना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कुछ? दानियल बेटे आपको समझ आ रही है? यस मिस, समझ आ रही। जी बेटा, ये इजी होता है, जरा गौर करने की बात होती है कि उन अल्फाज को हर एक शेर का, और इसका तरीका वही है कि हमने पहला पैराग्राफ जो लिखना है उसमें हमने शायर के 3-4 जुमले लिखने हैं, कोई हवाला शेर वैसा देना है और फिर उस शेर की एक्सप्लेनेशन देनी है। अब इसमें शायर ने जो है मैं अपने महबूब के खूबसूरत होठों की तारीफ करते हुए कहा है, तो शायर की जो हिस्स है यानी कि उसकी सेंस ऑफ जो है, क्या कह सकते हैं उसको, जमाल, खूबसूरती का हिस्स जो है वो शायर की इतनी तेज है तो उसको दुनिया की बनाई हुई चीजों में भी बहुत खूबसूरती नजर आती है। और वो एक ज़हीन और हसास ज़हन का फर्द होता है शायर। उसके ज़हन में कोई ना कोई ऐसी अनोखी मिसाल आती है जिसको वो मिसाल अपने महबूब के दे देता है उसके साथ। अब इसके बाद अगला है जी, अगला शेर है, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। अब दूसरा शेर इसका बिल्कुल डिफरेंट था, और तीसरा शेर फिर अल्लाह के इंसान की जिंदगी के बारे में आ गया। पता चल रहा ना, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। अब तीसरे शेर में कैसे कह रहे हैं, दिल की आंखों को खोल, चश्म कहते हैं दिल को, आंख को सॉरी, और दिल की आंखों को खोलो, इस दुनिया की हकीकत को जानो, आलम दुनिया को कहते हैं। दिल, अपनी आंखें खोलो दिल की और इस दुनिया की हकीकत जानो। इस दुनिया की हकीकत क्या है? एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है।
इंसान जब सोते हुए कोई ख्वाब देखता है तो सुबह उठकर उसको एहसास होता है कि उसको याद नहीं रहता कि मैंने क्या ख्वाब देखा, कभी कभार को याद रह जाता है, मोस्टली उसको एक धुंधला सा खाका होता है कि मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी थी, और फिर इंसान उस चीज को भूल जाता है। इस शेर में भी शायर जो है बता रहे हैं कि इस दुनिया में जब इंसान आता है तो उसके बाद इस दुनिया की जो खूबसूरतियां हैं, इस दुनिया के जो काम है, उनमें इंसान मगन हो जाता है और वो इस चीज को भूल जाता है कि मैंने वापस भी जाना है। हम सब भूले हुए इस बात को, हम सब इस चीज को भूल कर अपने दुनियावी कामों में मगन है, हर काम में मगन है, हमें अल्लाह की याद से गाफिल हम हुए पड़े हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि हम में से, हम नमाज भी पढ़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से टक्कर मार के फटाफट नमाज आ जाते हैं। हमारी हैसियत जब इस दुनिया में हम आ जाते हैं तो हम सिर्फ दुनिया को थोड़ा सा भी निकाल पाते हैं। इसका दौर तो इंसान को या बच्चों को इतना मसरूफ रखता है कि उसके पास तो लेट रेस होने के लिए भी उनके बकौल आराम नहीं है, क्योंकि उनके पास आजकल मोबाइल उनके हाथ में है, उनके पास चीजें ऐसी हैं, गैजेट्स ऐसे आ गए हैं कि वो उनके अंदर खोए रहते हैं। तो ये दुनिया इसमें इंसान खोकर अपने जाने को या अपने आखिरी वक्त को भूल जाता है, और फिर लेकिन जब तो फिर उसको एकदम से आंखें बंद होती है, उसको एहसास होता है कि ये तो मैं तो बहुत थोड़ा सा दुनिया में रहा हूँ, इस थोड़े से अरसे में मैंने कितने गलत काम कर लिए और इस दुनिया की रंगीनियों में खोया रहा, और मैंने कोई अपने आखिरत के लिए कोई सामान तैयार ना किया। और हकीकत तो यही है कि हमें आखिरत के लिए अपना सामान तैयार करना चाहिए, जो जाकर हमारे अमाल नामे के अंदर दाखिल हो, जो चीजें हो वो अल्लाह के सामने जब पेश होंगी तो हमारा अमाल नामा खुलेगा, तो हमें एहसास होगा कि हमारे अमाल नामे में क्या क्या चीजें हैं, जो कि हमने किन बातों में हम अपना टाइम जाया करते रहे, किन बातों में हम अपना वक्त बर्बाद करते रहे, फजूल कामों में हम अपने वक्त को जाया करते रहे। जबकि हमें हुक्म जो है इंसान के लिए गौर व फिक्र की बात ये है कि वो अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की रोशनी में गुजारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारे। अब अल्लाह के जो बताए हुए अहकामात हैं और अमल अकलमंद शख्स तो वही है जिसको पता हो कि मैंने इस तरह जिंदगी गुजारी, काम करेगा, और वो इस जगह से जब जाते वक्त उसको कोई फिक्र भी नहीं होगी कि मैंने इस दुनिया से जाना है और बन जाए। तो इसलिए मीर ने जो है दुनियावी जिंदगी की मिसाल एक ऐसे ख्वाब की तरह बताई है कि जिस तरह इंसान ख्वाब की हालत में कुछ ख्वाब देखता है तो उसी ख्वाब को जब वो जागता है तो उसको कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। तो इंसान को जिंदगी की भी जब ये हकीकत पता चलती है उस वक्त जब वो मौत की आगोश में जा रहा होता है, जो भी मौत उसको आकर जकड़ती है, जो भी फरिश्ता अजल आकर उसको पकड़ लेता है, उसकी आंखें बंद होती है तो उसको फिर अगली जिंदगी नजर आना शुरू हो जाती है कि अब मैं आगे जाकर क्या दिखाऊंगा, मेरा तो वक्त गुजर गया, मेरा तो जिंदगी ख्वाब की तरह मैंने गुजार दी, मैंने तो अपना वक्त जो था इन फजूल बातों में बर्बाद कर दिया और अपना वक्त जो था वो अताअत पे खुदाबंदी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक मैंने नहीं किया। तो शायर की इसी शेर में यही तलकीन है या हिदायत कह लें कि वो इंसान को कहते हैं, नसीहत करते हैं कि तुम अपने आप को बड़ी अक्लमंदी से जिंदगी गुजारो और मरने से पहले अपने अमाल इस तरह कुछ कर लो, संवार लो कि जाने के वक्त तुम्हारे पास तुम्हें कोई पछतावा ना रहे कि मैंने कोई दुनिया में जिंदगी गुजारी थी तो बगैर उसके अमल के, किसी नेक काम के, बगैर किसी रब के राजी करने के गुजारी है। तो इससे शायद की ये मुराद है कि हमने जो इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है उसको अपने रब के अहकामात के उसके दर पर जा। हालत अब इस्तराब की सी है, इस्तराब होती है बेचैनी। मैं बार बार अब इस शेर में भी शायर ने महबूब का जिक्र कर दिया, पहला शेर दूसरा शेर जो था डिफरेंट, सब मायने लग रखा है। अब इस चौथे में भी डिफरेंट है कि मैं बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। इस्तराब से मुराद होता है बेचैनी। मैं बेचैनी और बेकरारी की हालत में बार बार अपने महबूब के दरवाजे का चक्कर लगा रहा हूँ
اور شاعر جو ہے وہ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جس دن وہ محبوب کی گلی کا چکر لگائے اور اس کی دروازے کا چکر لگائے اور شاید کسی وقت وہ دروازہ کھول کے اس کو دیکھ لے، یعنی کہ اس میں وہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے بے چین نظر آتا ہے، مضطرب نظر آتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بار بار چکر بھی لگاتا ہوں لیکن مجھے اپنے محبوب کی جھلک دکھائی نہیں دیتی. یہ کہتے ہیں کہ میری بے چینی اور جو بے قراری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میری محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی اور میں ہر بار جب بھی اس کے دروازے پر جاتا ہوں تو ناکامی کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے. جب بھی میں جاتا ہوں تو اس کا دروازہ بند ہوتا ہے اور مجھے اس کی جو ہے محفل تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا، یعنی کہ بار بار میں اس کے دروازے پر جاتا ہوں لیکن وہ اتنا بے پرواہ ہے یا لاپرواہ ہے مجھ سے کہ وہ دروازہ تک نہیں کھولتا اور میرے لیے میں بار بار چکر لگاتا ہوں لیکن میں پھر بھی بے چین اور مضطرب رہتا ہوں. اب اس میں وہ اپنے محبوب سے ملاقات کا خواہش مند ہے جو کہ اس سے نہیں ہوتی. اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ اس دور کی شاعری ہے جب کہ اس طرح عام عورتیں یا مرد بالکل ملاقات نہیں کیا کرتے تھے بلکہ بہت پردوں میں بڑے طریقے سے پرانی اردو کی کہانیاں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح سر عام جو ہے عورتیں یا مرد باہر بھی نہیں جایا کرتے تھے، لیکن یہ تخلیقی ایک ان کا ذہن تھا شاعروں کا کہ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں ہی اپنے محبوب کو گھڑ لیتے تھے اور اس کی تعریف میں شعر و شاعری کرتے تھے. اب اس میں بھی وہ بار بار اپنے محبوب کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ میں بار بار اس کے دروازے پر بھی جاتا ہوں لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی. شعر نمبر 4 ہم نے کر لیا بیٹا. نیکسٹ جو ہوگا میں اگلی کلاس میں آپ کو کراؤں گی، اس کو آپ ریڈ کریں اور آپ خود بھی اس کی ایکسپلینیشن کیجیے. اس کے سوالات کے جوابات ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. شاید اس غزل میں کتاب اپنی کھولیں. اس غزل میں ردیف کے کون سے الفاظ ہیں؟ ردیف جو ہوتا ہے وہ ایک کے پیچھے آنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے اس پوری غزل میں کی سی ہے، یہ ردیف ہے کہ بار بار ایک کے بعد آنے والا لفظ ہے وہ کی سی ہے. اس کا جواب ہوگا کہ اس غزل میں ردیف کی سی ہے. اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے